اب ایک وقت ایسا آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر اپنی پیاری امت کو دنیا میں آنے کے بعد سے لے کے قبر میں سونے کے وقت تک کے اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی صدا بلند کرنے والے نبی، ایک ہی بات کہتے رہے، مکہ میں رہے تو سجدے میں آئے، 5 وقت کی نماز کے علاوہ جب بھی نبی سجدے میں ملے تو اللہ سے یہی کہتے رہے، رب حبلی امتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے میرے رب میری پیاری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے پیارے، اے میرے رب، اے پیارے رب، اے میرے غفار رب، اے میرے ستار رب، میری امت پر رحم فرما دے، میری امت پہ کرم فرما دے، میری امت پر نگاہ رحمت ڈال دے۔ اپنے امت کے لیے روتے رہے، مکے میں تھے تو روتے رہے، غار حرا میں تھے تو روتے رہے، مدینے میں تھے تو روتے رہے، معراج میں گئے تو روتے رہے، معراج میں بھی روتے رہے، روتے رہے نا؟ کب روئے تھے معراج میں؟ بتائیے کب روئے تھے معراج میں؟ وقت یاد نہیں، میں بتاتا ہوں، معراج ابھی گزرے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا رجب الشہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے نا، رجب اللہ کا مہینہ، اب اس مہینے میں بہت کام ہو جاتا ہے تو اللہ کا مہینہ، لیکن بڑا کام ہو جاتا ہے، غریب نواز کی چھٹی ہو جاتی ہے، سب سے پہلے یہی ہو جاتا ہے نا، غریب نواز کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہ غریب نواز کون ہے؟ عطائے رسول ہے، کس کے لیے؟ بھارت کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے 18,000 مخلوقات کے لیے عطائے رسول ہے۔ اب آپ سوچئے گا صاحب کیا بول رہے ہیں؟ 18,000 مخلوقات جو اللہ نے پیدا کیے، تمام مخلوقات کے لیے خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہے۔ وہ کیسے؟ سن لیجئے، وقت ہے نا؟ جی بتا دیجئے گا۔ اس طرح سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے، اے جبریل، میں نے فلاں کو اپنا دوست بنایا، آپ بھی انہیں اپنا دوست بنا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل انہیں اپنا دوست بناتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں، اے جبریل جائیے جائیے، روئے زمین پہ پھیل جائیے، میرا پیغام 18,000 مخلوقات کو دے دیجئے، سب سے کہہ دیجئے اللہ نے فلاں کو اپنا دوست بنایا ہے، آپ سب بھی اسے اپنا دوست بنانا۔ ہم کو جنگل میں جانا ہوگا تو ہم ڈرتے ہیں، شیر ہوگا، باغ ہوگا، چیتا ہوگا، کھا لے گا، مار دے گا، ہے نا؟ لیکن اللہ والوں کو ڈر نہیں لگتا، 12 سال 14 سال 18 سال 20 سال 24 سال جنگل میں گزار دیتے ہیں، نہ انہیں شیر کھاتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ ان کی زیارت کرنے کو شیر آتا ہے نا؟ تو پتا چلا کہ اللہ والوں کی حکومت ایک جگہ نہیں ہوتی، پورے 18,000 مخلوقات پر یہ ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اگر کوئی دوسرا کہے کہ یہ مر کے مٹی میں مل گئے تو مان لیں گے ہم؟ نہیں، بولیے صاحب، سب کو بولنا چاہیے نا، خالی آپ کا امام بول دے گا تو تھوڑی یہاں اقتداء تو بہذا الامام کا مسئلہ ہے، یہاں آپ کی نیت ہے اقتداء تو بہذا الامام، جی نہیں، یہاں پہ آپ حق سن رہے ہیں، اگر حق ہے تو آپ ہاں کہیے گا، میں غلط بول رہا ہوں، اگر لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو بائیکاٹ کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، مولانا غلط ہے تو میں اگر صحیح ہوں تو اس کو صحیح کر کے دکھاؤں گا، ہر بات پہ آپ کو ہاں اور سبحان اللہ نہیں کہنا، جی سچ سچ ہے، غلط غلط ہے، تو اللہ کے ولیوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا، کوئی تباہ نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کل بھی میرے ہند کا راجہ خواجہ تھا، آج بھی خواجہ خواجہ ہے، اور حشر تک یہ
में मेरा ख्वाजा ख्वाजा ही रहेगा। 22 तारीख को देखिए इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फातिहा होता है, बड़े धूमधाम से लोग करते हैं। ये उल्टे कुंडा कहता है ना, कुंडा कहते हैं। अच्छा ठीक है, फातिहा करते हैं। ये इमाम जाफर सादिक है कौन, किसके औलाद में से है? छठे इमाम हैं? छठे इमाम है। उधर छठी है, इधर छठे है। देखिए उधर छठे है, इधर छठी है, या इधर छठी है, उधर छठे हैं, लेकिन दोनों औलाद एक ही के हैं। दोनों औलाद एक ही के हैं। एक ताबईन तबे ताबईन में है और एक औलियाए कामिलीन में है ना। तो दोनों अपने अपने जगह पर बड़े हैं, इसलिए बड़े हैं कि जो बड़े होते हैं वो बड़े रहते ही हैं। जिनका घराना बड़ा हो वो लोग भी बड़े होते है ना। अब आजकल का घराना मत देखना, मैं जिस घराने की बात कर रहा हूँ उस घराने का एक वाकया तवज्जो हाजिर रखिएगा, बड़ी कीमती जुमला दे रहा हूँ मुसलमानों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रजब शहरुल्लाह पे अभी हूँ, अभी शाबान नहीं आया, अभी रजब शहरुल्लाह पे हूँ। वक्त का मैं 9:30 तक खत्म भी होना है ना, इसलिए मैं सिमट के इधर उधर से भाग रहा हूँ, कैसे निकल के बाहर चला जाऊं। जंगल में तो घुस गया हूँ है ना, अब निकलना भी मुझे है। तो इसलिए आप रजब शहरुल्लाह में सुन लीजिए, बड़े घर वाले बड़े होते हैं। कैसे बड़े होते हैं? एक भिखारी आया, एक भिखारी आया, आकर के एक शख्स बैठा हुआ है, रोटी खा रहा था। कैसे खा रहा था? पानी में रोटी बोल बोल के खा रहा था, वो भी रोटी सूखी हुई थी है ना, पता नहीं कितने दिन की थी, खा रहे थे। ये भिखारी बेचारा भूखा था, साहिल था। बोला सरकार आप खा रहे, मुझे भी भूख लगी, मुझे भी खिला दीजिए, मैं भी खाना चाहता हूँ। तो उसने क्या कहा, अम्मा मुझसे मत मांगो ना, ये इस दरवाजे पर मैं बैठा हूँ ना, इस दरवाजे पे दस्तक तो ये हुसैन का दरवाजा है। हाँ सुभान अल्लाह। ये दरवाजा हुसैन का है, इसे खटखटाओ, तुम्हें इससे अच्छा खाना मिलेगा। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? कहा सायल। कहा बात क्या है? कहा भूख लगी है। जैसे दरवाजा खोला गया, साहिल की निगाह दस्तरखान पे पहुंच गई, और जब दस्तरखान पे देखा तो किस्म किस्म के अच्छे अच्छे खाने सजे हुए हैं। साहिल बोला बात बाहर हो रही थी, अंदर खबर कैसे हो गई? पता चला कनेक्शन था, लेकिन साहिल को पता नहीं है, साहिल अभी नहीं जानता है। साहिल को हुक्म हुआ, आइए आइए हाथ धुले, हाथ धुल लिया। अब ये हाथ धुलने की बात क्यों आ गई? इमाम हुसैन की बारगाह में खाने की बात हुई थी, हाथ धुलने की बात नहीं हुई थी। ये खाने से पहले हाथ धुलना क्या माना रखता है? करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ब्ल तामुल वज़ू, खाने से पहले वज़ू कर लिया करो। लीजिए मस्जिद में बैठे हैं ना, अदब के साथ जो बात होगी बड़ी अदब के साथ होगी। क़ब्ल तामुल वज़ू, खाने से पहले वज़ू करो। या रसूलल्लाह कैसे वज़ू करे? कहा दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धो लिया करो, और पाँव से किसी कपड़े से पोंछा न करो। जब ये दोनों हाथ धो लोगे, 3 बार धो लोगे, अल्लाह तबारक व तआला एक वज़ू का सवाब तुम्हारे नामे आमाल में दर्ज फरमा देगा। सुभान अल्लाह। आज साइंस बोलने लगी है कि हाथ धो के खाया करो, जरासीम मर जाएगा। अबे हम जानते हैं 1400 बरस पहले मेरे मुस्तफा ने कहा था कि तो आज का पैदा है देखा जाएगा। 1400 बरस पहले मेरे करीम आका ने कहा था हाथ धो के खाना खाया करो, और खाने के बाद जब भारी हो जाया करो तो हाथ धोया करो, तुम पोंछ लिया करो, है ना।
अल्लाह के नेक बंदो सुनिए, सायल खाना खाने बैठ गया, हाथ धो करके, जब हाथ धो के खाना खाने बैठ गया तो खाते खाते पेट भर कर शिकम से रोके खा लिया। तो कहा सरकार एक बात आपसे कहनी थी। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा सरकार एक अर्जी मेरी है, कबूल कर लीजिए। आपने मुझे खाना खिला करके तो मेरे शिकम को शहर कर दिया, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा। कहा क्या है? कहा बोलिए 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 क्या बात है? कहा एक आदमी का खाना मुझे दे दीजिए। कहा अच्छा, कहा एक आदमी का मुझे खाना भी दे दीजिए। कहा किसके लिए ले जाना चाहते हो? कहा एक आदमी है उसके लिए ले जाना चाहता हूँ। कहा कौन है वो आदमी? कहा दरवाजे पे आपके बैठा हुआ है, सूखी रोटी पानी से खा रहा है, उसी सायल के लिए ले जाना चाहता हूँ। तो जवाब मिला, सुन प्यारे, ये आँख से आंसू जो गिर रहे हैं, ये आंसू किसी और चीज के नहीं है। दरवाजे पे जो बैठा है वो कोई और नहीं, इस घर का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, ये कोई और नहीं, ये इस घर का मालिक मौला अली है, जो दरवाजे पे सूखी रोटी खाता है, मगर अपने दस्तरखान पे लोगों को अच्छे खाना खिलाया करता है। सुभान अल्लाह। ये तो आशिकों ने कहा, रह के फाकों में वो गैरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। हज़रात मोहतरम, ये है शान अली, ये है शान ख्वाजा, ये है शान इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब आ जाइए 27 के शब में उम्मे हानी के घर में मुस्तफा आराम कर रहे, नबी सोए हुए। किसके घर? उम्मे हानी के घर। अपने घर नहीं सोए, उम्मे हानी के घर सोए। जिब्रील को भेजा गया है, जिब्रील जाइए। कहा क्या बात है? कहा मेरे महबूब को ले आइए। हाँ ले आया जाए, कहा ले आइए। अब जिब्रील चले, कहा सुनिए प्रोग्राम सुन लीजिए। कहा क्या है? कहा डायरेक्ट इधर लेके मत आइएगा। कहा फिर? कहा आदम से लेके ईसा तक जितने पैगंबर आते रहे और जिन जिन के अंदर मैं अपने महबूब का नूर डालता रहा और जिन जिन को मुसीबतों के वक्त मेरे नूर का सदका मिलता रहा और मुसीबत से निजात पाते रहे, उन तमामों ने इस नूरे पाक को देखने की तमन्ना जाहिर की थी, इस नूरे मोहम्मदी को देखने की तमन्ना जाहिर की थी। लेकिन मैंने दुनिया में इन्हें नहीं दिखाया। आदम आए चले गए, शीशाए चले गए, यहया आए चले गए, जकरिया आए चले गए, मूसा आए चले गए, यूनुस आए चले गए, ईसा आए चले गए, याकूब आए चले गए, तमाम के तमाम आए गए। सबके एंड में लास्ट में मैंने अपने महबूब को भेजा है। लेकिन जिब्रील, मेरा पहला प्रोग्राम ये है कि तमाम को जियारत करा दे मेरे महबूब। सुभान अल्लाह, तमाम को दिखा दे, वादा पूरा करा दे। अब देखिए कमाल की बात है साहब, एक जगह तो रुक करके मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा कि अगर आदमी मर के मिट्टी में मिल गया फिर आया कैसे? है ना? और मस्जिद अक्सा, कुरान अजीम की बात गलत हो सकती है? मोहम्मद खुदा फरमान बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर आना बदला जाएगा। कुरान झूठ नहीं बोल सकता, कुरान में कुछ गलत नहीं है। अब कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आख है वो खुदा जिसने रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब को सैर कराई, मस्जिद अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, है ना? उम्मे हानी के घर आ गए जिब्रील। अब जब आए तो देखे लेटे हुए,
अब सोच रहे जगाए कैसे, हिला दे। आज क्या तरीका हमारा है, हिला दो, उठा दो। सो रहे तो क्या हुआ, उठाओ उनको। ये तरीका नहीं है, सुन लो तरीका। और ये कोई बरेली का इमाम नहीं दे रहा है, अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता बता रहा है। जगाने का तरीका सुन। कभी सिराने, कभी पैताने, कभी सिराने, कभी पैताने कर रहे, कैसे जगाए, कहीं नबी नाराज ना हो जाए। हाँ, कुछ मौलवी साहब लोग का अकीदा है कि जिब्रील उस्ताद है, माज़अल्लाह, बोलिए माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। हाँ, कुछ लोगों का अकीदा है अब उस्ताद की खटिया खड़ी हो गई, कैसे जगाएं। तो उस्ताद ने बेचारा सोचा कि जगाने के लिए भी पूछना पड़ेगा, ये तू ही बता कैसे जगाएं। राज की बात है, खोल रहा हूं। तू बता, तेरा महबूब सो रहा है, कैसे जगाऊं। जिब्रील तुझे पता नहीं है, मेरा महबूब सोता नहीं है, बल्कि सबका दिल टूटा रहता है। देखे कौन कैसा है, आज तो तेरे मुकद्दर को जगाने की घड़ी आई है। जिब्रील ले उसके सोने के बहाने को अपने मुकद्दर को जगा ले। कहा क्या करूं, कहा आंखों के पलकों से मेरे महबूब के तलवे में झाड़ू लगा। आंखों के पलकों से मेरे महबूब के तलवे में झाड़ू लगा दे। अगर तू झाड़ू लगाएगा तो महबूब आंखें खोल देंगे, वरना मेरे महबूब के सोने की बात करता है। अरे मैं तो बराबर कहता हूँ, और जब अलील मुहिब्बी कई बार क्या नाम कुम या हबीबी कम का नाम। ऐ महबूब इतना देर तक खड़े रह रहे, पैरों में सूजन आ जाते हैं, कम से कम थोड़ा सो लिया करो, थोड़ा सा। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरा महबूब नहीं सोता, तो तुम कैसे कह रहे हो कि सो रहे हैं। अरे तलवार में अपने पलकों को लगाओ और महबूब को बेदार करो। जगाया, जैसे ही तलवे में लगाया, आँख खुल गई, गुदगुदी लगी, आँख खुली। जिब्रील, अरे यकीनन नबी दिल सो रहे थे जिब्रील की, कैसे जाने की जिब्रील ही है ना। जिब्रील क्या बात है, कहा अल्लाह ने बुलाया है। कहा जिब्रील ये क्या कह रहे हैं। अरे आदम को भी बुलाया था, कहा नहीं। कहा शीश को, कहा नहीं। कहा याकूब को, कहा नहीं। कहा यूनुस को, कहा नहीं। कहा 1,24,000 पैगंबरान इस्लाम में किसी को, कहा किसी को नहीं। बल्कि मूसा ने कोहे दूर पे कहा था, रब्बे अरनी दिखा दे, तो उसने कहा न देख तो बेहतर है, लंकरानी मैं तुझे हरगिज नहीं दिखा सकता। लेकिन जबरदस्ती करके खता कर गए। जैसे ही खता किया, कोहे दूर चल करके रात हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम खर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश होके पड़ गए। होश में लाने के बाद अल्लाह ने कहा और भी देखना है। कहा अब क्या देखना, जो देखने की थी वो देख लिया। दीदार का चर्चा कौन करे, अब नहीं देखना है। मूसा की तो ये हालत हो गई सरकार। कहा तो फिर मूसा की जब ये हालत हो गई तो ये जिब्रील मेरी क्या हालत होगी, मैं कैसे देखूंगा। कहा चलिए, तो जब रब ने बुलाया है तो इंतजाम से बुलाया है। सुभान अल्लाह। कैसे गए मस्जिद हरम में। हरम कहाँ है, खाने काबा में। अंदर तशरीफ ले गए, अंदर गए तो सीना चाक हो गया। हुजूर का सीना चाक हो गया, चीर दिया, काट डाला, दो टुकड़े करके दिल को निकाल दिया, जमजम में गुस्ल दे दिया। हमारा इसीलिए तो अदब से खड़े होके लोग पीते हैं कि इस पानी में नबी के दिल को गुस्ल दिलाया गया है। और कोई मौलवी का इनकार नहीं है, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो यहाँ का वहाबी हो, किसी को इनकार नहीं है। सब ने पिया और सबको पीना है। आज भी जाना है तो लेके आना है जमजम, है ना। जमजम की हकीकत भी बताना है, बस एक इशारा कर दिया। अच्छा, अब वहां से चाक किया, चाक करके दिल को गुस्ल